हेलो, कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई अच्छी चल रही है? तो हमारी सीरीज क्लास 10th केमिस्ट्री के अंदर जो टॉपिक चल रहा है, चैप्टर चल रहा है एसिड बेस एंड सॉल्ट, इसमें वी हैव कंप्लीटेड द एसिड्स in a complete way. We have completed salt and after that the pH scale and the related questions of the pH scale. Now in this class we are going to explore these topics, that is salt, which include type of salt, salt hydrolysis and pH, solubility of salt, preparation, methods of salt. ये बहुत important रहने वाला है. And after this particular class I am going to explore the different type of salt which is related with your CBSE as well as other syllabuses. Clear? तो ये हम स्टार्ट करते हैं. ISC में भी ये ICSE में भी ये बहुत ज्यादा काम आने वाला है टॉपिक, CBSE में भी ये काम आने वाला है टॉपिक. तो इसको हम एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं. तो बेटा देखते हैं सबसे पहले सॉल्ट का मतलब क्या होता है. सॉल्ट, ऑल्दो सबको पता है, सॉल्ट के अंदर बेटा सॉल्ट एक केमिकल कंपाउंड है, आयोनिक नेचर है और इस आयोनिक नेचर के टू डिफरेंट पार्ट होना कंपलसरी है. वन इज कैटायन, अनदर वन इज एनायन. जितना चार्ज पॉजिटिव का होगा उतना ही चार्ज नेगेटिव का इस सॉल्ट में होना चाहिए, जिससे कंप्लीटली आपका जो सॉल्ट होगा वो बेटा हमेशा ही न्यूट्रल रहने वाला है. तो कैटायन विच इज ऑल्सो नोन एज मेटेलिक आयन, जिसमें एक एक्सेप्शन है बेटा NH4 प्लस विच इज नॉट मेटेलिक आयन, लेकिन यहां पर हम यूज कर सकते हैं एनायन के लिए नॉन मेटेलिक आयन, आप बोल सकते हैं नॉन मेटेलिक आयन, इसके लिए बता सकते हैं हम. अब जैसे हम बात करते हैं, सपोज करते हैं कि HCl react with NaOH and giving NaCl along with water. तो सबको पता है बेटा कॉमन सॉल्ट है NaCl, रॉक सॉल्ट भी इसको बोलते हैं. इफ वी सी दैट दिस HCl इज एन एसिड एंड NaOH इज अ बेस, तो पॉजिटिव पार्ट, दिस वन इज नेगेटिव पार्ट, Na प्लस इज पॉजिटिव, OH माइनस नेगेटिव. द नेगेटिव पार्ट of acid combined with the positive part of salt like this way. It means if we are having salt NaCl, this is positive part, this one is negative part. Now you can say this is an acid HCl, NaOH is a base. So the Na plus part of a base, which is also known as basic radical, and Cl minus from acid, negative charge means acid radical. It means when acid radical from acid combined with basic radical of a base, it gives salt. This is the general concept of a salt. Although in the classification we are going to study in a brief way what does mean by salt in terms of classification as well as type, but by this way you can understand the meaning of salt, that salt contain at least two compulsory part, one is cationic part, another one is anionic part. The cationic part, positive part, the cation part comes always from a base and the anionic part come always from an acid. It means acid radical from acid when combined with basic radical of a base, combined together they gives a salt. So this is a general meaning of salt. Now explore the type of salt. So we are starting about the topic, that is types of salt. Although we have different type of salts, but according to the syllabus of class 10th chemistry, we have to study basically three different types of salt. One is beta normal salt. Another one is acidic salt. And next is basic salt.
So normal salt, what does mean by normal salt? Normal salt beta contain only two component, one is cation, another one is anion. Clear? When these two combine together, they form a normal salt. But remember, cation other than H plus and anion should be other than OH minus. This is very much important. Like normal salt must contain cation as well as anion both, but cation should be other than H plus and anion should be other than OH minus. This is known as basically normal salt. About acidic salt, if we are talking about, in this acidic salt we are having basically three different type of component. One is cation, another one at least one H plus ion, ionizable, and one is anion. If we contain all these three together, then it is known as acidic salt. In the example we are going to explore it. And now we are talking about the basic salt. In this basic salt again we should be having three different components of a salt. One is cation, another one is anion, and at least the salt must contain at least one OH minus ion. If all these three together, then you can say the salt is basic, this one salt is acidic, and this one salt is normal. So let us understand about this particular. If I am talking about NaCl, NaCl contain, here you can see NaCl is a salt which contain a positive part means cation, another contain a negative part of anion, and it does not contain any H plus as well as OH minus. Clear? So it means it is a normal salt. Let us take another example like Na2SO4, sodium sulfate. Here if we ionize or dissociate the sodium sulfate, you are getting sodium ion in the solution as well as the sulfate ion into the solution. You are not getting any H plus or OH minus ion into the solution. It means it is a normal salt. Let us take another example like KNO3. Here you can see K plus and NO3 minus, no H plus, no OH minus into the solution. It means it is a normal salt. We can take lots of example related with this particular like Na plus and NO3 minus in this salt, no H plus, no OH minus. Now I think you must have understood about the meaning of normal salt, what type of salt should be known as normal salt. Now let us take about the acidic salt. If I am taking like NaHSO4, sodium hydrogen sulfate or sodium bisulfate, if I ionize this particular salt, then I am going to take in the solution Na plus, H plus and SO4 2 minus. It means we are getting three different type of ion. One is cation, another one is H plus and at least a anion. So all three conditions are fulfilled. It means I can say NaHSO4 is a kind of acidic salt. Let us take one more example like NaHCO3, sodium bicarbonate. Sodium bicarbonate, if I ionize this sodium bicarbonate into the aqueous solution, now I am going to take Na plus ion into the solution along with H plus ion and carbonate ion. So all three conditions are fulfilled. It means it is the example of acidic salt. Got it? अभी इसको और एक्सप्लोर करना है बेटा, चिंता मत करो, बहुत अच्छे से समझ में आएगा. Now let's take an example of CaOHCl. If I ionize this particular, then I am going to get Ca2 plus, OH minus and Cl minus. Here you can take, it is a cation, this one is OH minus, one OH minus, and this one is anion. It means you are getting cation, anion as well as OH minus together in a salt. It means you are talking about the basic salt. Let's take one more example like CuOHCl. With the same way you can understand, here you are going to get Cu2 plus ion into the solution, OH minus ion into the solution as well as Cl minus. So this is known as
basic calcium chloride, this is known as basic, OH को basic बोलते हैं बेटा, basic copper chloride. Other than this, one more classification is there about the salt. Let's explore that also. In this example we can do it. See here, if I am talking about NaCl, now we know the negative part of NaCl is coming from an acid, and Na plus part means the cationic part of a salt always come from a base. So sometime from the acid side we can classify, sometime from the basic side we can classify. How? If I am talking about according to acid, what type of salt it is? According to acid, what type of salt it is, then the acidic part will be seen, and acidic part is Cl minus. In that case, I will say that it is a chloride. It is a chloride salt. किस टाइप का सॉल्ट मानते हैं हम? क्लोराइड इसको, अकॉर्डिंग टू एसिड. और अकॉर्डिंग टू अगर मेरे से पूछते हैं कि ये सॉल्ट अकॉर्डिंग टू बेस इसका क्लासिफिकेशन बताइए. समझ में आ रहा है बेटा? अकॉर्डिंग टू बेस इसका क्लासिफिकेशन बताइए. तो मैं बेसिक पार्ट यानी पॉजिटिव वाला पार्ट इसमें देखूंगा, और पॉजिटिव वाला पार्ट देखने के बाद मैं बताऊंगा ये एक सोडियम सॉल्ट है. कैसा है बेटा? ये एक सोडियम सॉल्ट है. इस टाइप से हम लोग अलग क्लासिफिकेशन करते हैं. लेट्स एक्सप्लोर फ्यू मोर एग्जांपल. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस सॉल्ट अकॉर्डिंग टू एसिड, अगर एसिड के अकॉर्डिंग हम लोग बात करते हैं, एसिड के हिसाब से अगर हम लोग बात करते हैं, तो व्हाट टाइप ऑफ सॉल्ट इट इज? एसिड यानी माइनस वाले पार्ट को देखकर हमें आंसर देना है. तो अकॉर्डिंग टू एसिडिक पार्ट इट इज अ सॉल्ट ऑफ नाइट्रेट. NO3 माइनस को देखकर आप क्या बता सकते हैं किस टाइप का सॉल्ट है बेटा? ये एक नाइट्रेट सॉल्ट है. नाइट्रेट सॉल्ट है. मेक सेंस? लॉजिक आ रहा है समझ में? सपोज करते हैं यहां पर हम लोग बात करते हैं, सपोज करते हैं यहां पर अगर मैं कैटायन के हिसाब से बोलूंगा तो इसको एक सोडियम का सॉल्ट बोलूंगा. यहां पर एनायन के हिसाब से बोलूंगा तो एक क्लोराइड का सॉल्ट बोलने वाला हूं. तो लाइक दिस वे हम डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन के अंदर क्लासिफिकेशन में अकॉर्डिंग टू एसिड आपसे क्लासिफिकेशन पूछ रहे हैं, अकॉर्डिंग टू बेस पूछ रहे हैं. एसिड के अकॉर्डिंग पूछते हैं तो नेगेटिव वाला जो आयन होगा वो नाम के हिसाब से आपको नाम देना होगा. अकॉर्डिंग टू बेस सॉल्ट का क्लासिफिकेशन या नाम पूछते हैं तो अकॉर्डिंग टू पॉजिटिव कैटायन यू हैव टू गिव द आंसर फॉर द सॉल्ट. इज दैट क्लियर फॉर एवरीवन? सो यू कैन कंप्लीट इट एंड लेट्स एक्सप्लोर द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, विच इज अकॉर्डिंग टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लेट्स एक्सप्लोर. सो देखते हैं बेटा सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का टॉपिक. सी, इफ आई एम हैविंग an acid reacting with the base, we are getting a salt along with water. This process is known as neutralization. This process is known as, everybody knows, when acid combine with the base, it gives salt and water. Process is known as neutralization. But if I am making this process in a reverse direction, like I am taking like NaCl and I am adding excess of water, which is also known as a salt hydrolysis. पानी बहुत ज्यादा मिलाना एसिड के अंदर. So salt plus excess of water, in that case if we explore it like this way, it will be better understood with all the student. This is HOH, means water. NaCl, this one is the negative part, acidic part, this one is basic part. Water, you know how to ionize water, H plus and OH minus. Here the negative part will come to this way and positive part will come to this way. According to this we are going to get NaOH and HCl. Means a salt when dissolved in excess of water, basically showing those acid and bases from which that particular salt has been prepared. Now I can say this is the salt, this is the base and this one is the acid. By taking these two we can prepare this particular salt. NaCl हम लोग बना सकते हैं if we are taking NaOH along with HCl. So see here, if NaOH I am talking about is a strong base, you all know, we have already studied about the acid and bases, and this HCl is a strong acid.
It means I can say this NaCl salt is a salt of strong acid with strong base. बेटा ये एक ऐसा एसिड है जो स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड के मिलने से बनाया जा सकता है. If a salt is prepared by a strong acid and strong base, remember the salt solution, अगर हम लोग NaCl का salt solution बनाए यानी पानी में NaCl डालकर एक solution को बना लें, the salt solution will be neutral. Salt solution बेटा कैसा होगा? न्यूट्रल होगा. क्यों न्यूट्रल होगा? क्योंकि इसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है, एक दूसरे को पूरी तरीके से ये न्यूट्रलाइज कर देंगे. और पूरी तरीके से क्योंकि ये न्यूट्रलाइज कर देंगे इसलिए हम बोल सकते हैं NaCl का सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन पूरी तरीके से न्यूट्रल होगा. और अगर ये पूरी तरीके से न्यूट्रल है बेटा तो इस केस में हम pH वैल्यू NaCl सॉल्यूशन की क्या बोल सकते हैं? यू नो अबाउट इट. pH विल बी 7 फॉर दिस पर्टिकुलर. गॉट इट? लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल. लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट NaNO3, and if I am adding excess of water into it, I am getting NaOH along with HNO3. So you know the method how to complete the reaction according to the ionic method. So here we can say this is a salt. This one is a strong base. In a short way I am writing SB. HNO3 everybody know strong acid. It means if I am talking about NaNO3, it is a salt of कैसा सॉल्ट है बेटा? स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के कॉम्बिनेशन वाला सॉल्ट है. स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के कॉम्बिनेशन से अगर सॉल्ट बनेगा तो इसका pH कैसा रहने वाला है सॉल्यूशन का? 7, और ये न्यूट्रल रहेगा. So by this way we can predict the pH value of a solution. अभी कुछ और एग्जाम्पल लेंगे, ये चीजें और अच्छे से आपको एक्सप्लोर होते हुए दिखाई देंगी. Let's take another example. Like I am taking Na2SO4 along with excess of water. हमने excess of water को लिया, रिएक्शन को बैलेंस करना सभी को आता है, तो सोडियम का हाइड्रोक्साइड बनेगा बेटा इसके अंदर. आयनिक मेथड आप लोग अप्लाई करिए और साथ में आपको सल्फ्यूरिक एसिड मिलने वाला है. सल्फ्यूरिक एसिड बेटा एक स्ट्रॉन्ग एसिड है and NaOH is a strong base, and when strong acid and strong base combine together forming this particular salt, it means you can say what type of salt it is. It is a salt of strong acid with strong base combination. It means all these three examples are more or less same, and the aqueous solution of Na2SO4 will be having pH is equals to 7. It means the solution will be neutral for सोडियम सल्फेट. आई थिंक ये वाला पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया. लेट्स एक्सप्लोर फ्यू मोर एग्जांपल जहां पर आपको pH कम या pH ज्यादा वाले भी समझ में आने वाले हैं. देखते हैं. इफ आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ सोडियम एसीटेट, इट इज अ सॉल्ट CH3CONA, and I am adding excess of water into it. So I am going to get acetic acid with sodium hydroxide with the same. अगर हम एक बार फिर से करके देखना चाहें तो देख सकते हैं. This is water. We know the dissociation pattern of water. H plus, OH minus. This is sodium acetate. Sodium acetate, sodium is positive, acetate is negative. So it will combine with this pattern. So we are going to get acetic acid CH3COH along with sodium hydroxide. Now you know sodium hydroxide is a strong base. Acetic acid is a weak acid. Got it? Everybody knows organic acids are always weak acid. It means what I can say? I can say this is a salt. Sodium acetate is a salt of weak acid with a strong base. Weak acid with a strong base. This is the combination for this particular salt. In this particular we can say, since the base is strong as compared to acid, since the base is strong as compared to acid, so the nature of this salt, the nature will be basic. इस सॉल्ट के सॉल्यूशन की, एक्वस सॉल्यूशन की बेटा नेचर, सोडियम एसीटेट के एक्वस सॉल्यूशन की नेचर कैसी हो जाएगी? बेसिक. क्यों हो जा रही है बेसिक?
because it is a combination of a strong base with a weak acid. So we can say the pH value, base के लिए क्या होता है हमेशा greater than 7. The pH value will be greater than 7 if we are preparing a solution of sodium acetate into the water. बात समझ में आ गई? एक और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, like NH4Cl combined with H2O water, आयोनिकली देखते हैं H plus OH minus, अमोनियम क्लोराइड को आपको पता है क्लोराइड, and this one is ammonium. So this will go to this way and plus will go to minus way. So ammonium hydroxide we are getting here NH4OH, along with we are getting HCl. So everybody know HCl is a strong acid and NH4OH is a weak base. So it means what you can say, लॉजिक आपको अच्छे से मुझे पता है कि समझ में आ रहा होगा. ये कैसा सॉल्ट है बेटा? ये सॉल्ट है वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का. वीक बेस है यहां पर और कंबाइन कर रहा है स्ट्रॉन्ग एसिड से. वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो सॉल्यूशन तैयार करेंगे आप, एक्वस सॉल्यूशन, इसका जो नेचर होगा बेटा, द नेचर विल बी, नेचर कैसा होगा आपने समझ लिया होगा. एसिड इसमें स्ट्रॉन्ग है, बेस इसके अंदर कमजोर है, तो इसका नेचर विल बी कैसा होगा? एसिडिक. कैसा होगा? एसिडिक नेचर होगा. और अगर एसिडिक नेचर है तो आप ऐसे केस में बता सकते हैं एसिड का पीएच कैसा होता है बेटा? हमेशा लेस देन 7. तो पीएच वैल्यू इसकी क्या रहने वाली है? लेस देन 7. ठीक है. तो बाय दिस वे यू कैन कनेक्ट विद योर लॉजिक, लाइक बाय सीइंग अ पर्टिकुलर salt, how you can predict the pH value of a particular solution. You have to use this particular logic, like pH is less than 7, it means the nature will be acidic. pH greater than 7, it means nature will be the basic. And if pH is equals to 7, it means your salt solution will be neutral in nature. So I think I made myself very much clear about these three topics. Let's explore the solubility of salt. Again, a very, very important topic. And I am going to give you a kind of trick to understand about the solubility of salt. So, solubility of salt. Although we can make a list about these are the salts which are soluble in water, these are the salts which are insoluble in water, but that's very much tedious. It's very much difficult if you want to memorize the list of that particular. But what we can do, I am just giving you 3-4 points which will help you out how to memorize about the solubility. So first point, all the salts are soluble. All the salts are soluble. First point, Na plus, it means if it contains sodium ion, potassium, rubidium ion, cesium ion, clear, ammonium ion, nitrate ion, nitrite ion. If you are containing all these ion, your salt is containing all these ion, then definitely your salt will be soluble in water. Clear? Next point, all chlorides, salts are soluble. All chloride salts are soluble except याद रखना है ये एक्सेप्शन. जब आप क्लास 11-12 में चले जाएंगे तो आपको लॉजिक भी समझ में आएगा ये एक्सेप्शन क्यों बने हैं. जब हम कैटायन एनालिसिस लैब के अंदर करते हैं तो फर्स्ट ग्रुप के टेस्ट के लिए यही वाले कैटायन रखे जाते हैं. एक्सेप्ट लेड आयन, एक्सेप्ट सिल्वर आयन और एक्सेप्ट मर्क्यूरस आयन. So these are the exceptions, like lead chloride is insoluble, silver chloride is insoluble, mercurous chloride is insoluble. Except these three, all chlorides are soluble. I am talking about class 10th chemistry, mind it. So number 3, if we are talking about all salts of sulfate, all salts of sulfate are soluble. अगेन एक्सेप्ट, किसको छोड़ दे रहे हैं बेटा? एक्सेप्ट आप कैल्शियम को छोड़ दें, कैल्शियम सल्फेट को छोड़ दें, आप लेड के सल्फेट को छोड़ दे रहे हैं यहां पर,
आप बेरियम के सल्फेट को छोड़ दे रहे हैं और आप एल्यूमिनियम के सल्फेट को छोड़ दीजिए। इन चारों को छोड़कर बाकी जितने भी सल्फेट आपको मिलते हैं वो वाटर सॉल्युबल होने वाले हैं। क्लियर? एंड फोर्थ पॉइंट के बारे में बात करते हैं। ऑल सॉल्ट्स ऑफ कार्बोनेट CO3 2-, सल्फाइड बाइकार्बोनेट HCO3 और इसमें रख सकते हैं सल्फाइड SO3 2-, आर इनसॉल्युबल। ये सब क्या होने वाले हैं बेटा? इनसॉल्युबल होने वाले हैं। तो देखिए 4 पॉइंट से आपको सॉल्युबिलिटी का पूरा कंसेप्ट पता चल रहा है। हाँ, एक पॉइंट मैं आपको बता दूं, काफी इंपॉर्टेंट है। इन केस पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 4 में कोई कॉन्ट्राडिक्शन आता है, पॉइंट नंबर 4 एंड पॉइंट नंबर 1 में। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सोडियम सल्फाइड, अब सोडियम को आप देखेंगे अपने सॉल्ट में, कैटायनिक पार्ट को देखेंगे तो लगेगा सॉल्युबल बोलना चाहिए। सल्फाइड को देखेंगे तो आपको लगेगा कि इनसॉल्युबल बोलना चाहिए। इन दिस केस, इन दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, यू हैव टू प्रिफर पॉइंट नंबर 1, गिव प्रिफरेंस। इसको आप प्रेफरेंस देंगे, इसको आप क्या करने वाले हैं बेटा? प्रेफरेंस देंगे, तब ये पॉइंट नंबर 4 वैलिड नहीं माना जाएगा, क्योंकि यहां फर्स्ट वाला जो पॉइंट है इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं काम करता है। ऑल्दो सोडियम का एक सोडियम कार्बोनेट एक्सेप्शन है, लेकिन क्लास 10th में हम उसको उतने डिटेल में अभी जरूरत नहीं है उसको पढ़ने की। अब इसके कुछ एग्जाम्पल समझते हैं कि कैसे हम सोचते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब आपको आंसर बताने हैं। मैं पूछता हूं ZnCl2 बेटा सॉल्युबल होगा या नहीं होगा? मेरे तुरंत सोचूंगा कि क्लोराइड, ऑल क्लोराइड्स आर सॉल्युबल। इन तीनों को छोड़ दूंगा तो बाकी सब सॉल्युबल है, तो जिंक तो इस लिस्ट में है नहीं, तो बेटा क्या हो जाएगा? ये सॉल्युबल हो जाएगा वाटर के अंदर। लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट PbNO3 होल ट्वाइस, लेड नाइट्रेट। अब लेड मेरे को 2 जगह याद है। एक लेड मैंने यहां पर लिखा, यानी लेड का क्लोराइड होगा तो सॉल्युबल नहीं होगा। लेड यहां पर भी लिखा, लेड का सल्फेट होगा तो सॉल्युबल नहीं होगा। लेकिन यहां पर आप देखिए कौन सा पॉइंट आया? लेड तो ठीक है, कुछ कंफ्यूज कर रहा है, लेकिन यहां नाइट्रेट देखिए, और नाइट्रेट मैंने फर्स्ट वाली लिस्ट में यहां पर लिखा है कि ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल। तो सभी नाइट्रेट जब सॉल्युबल है तो फिर भैया कोई भी हो जाए तो ये कैसे रहने वाला है? सॉल्युबल रहने वाला है। गॉट इट? लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट सोडियम सल्फाइड। सोडियम यहां पर दिखाई दे रहा है, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं होता, आगे मुझे सोचने की जरूरत नहीं है। ऑल्दो अगर मैं सल्फाइड पर ध्यान दूंगा तो मुझे कंफ्यूजन हो जाएगी, तो सिंपली मैं क्या बोलने वाला हूं? सॉल्युबल बोलने वाला हूं। लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट बेटा सिल्वर क्लोराइड AgCl। क्लोराइड सभी सॉल्युबल होते हैं, लेकिन 3 नहीं होते, सिल्वर का क्लोराइड, लेड का और मर्क्यूरस का। इसका मतलब ये तो सॉल्युबल होने वाला नहीं है, तो ये कैसे रहने वाला है? इन सॉल्युबल रहने वाला है। सो दिस इज द लॉजिक बिहाइंड हाउ यू हैव टू थिंक अपॉन अबाउट अ पर्टिकुलर सॉल्ट, कि कौन सा सॉल्ट सॉल्युबल है। आप जितने चाहें सॉल्ट लिख सकते हैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट से बिल्कुल क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा। क्लास 10th की बात कर रहा हूं, बार बार इधर उधर ज्यादा कंफ्यूज मत करना। क्लास 10th के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल सही से समझ में आएगा कि कौन सॉल्युबल है बेटा और कौन इनसॉल्युबल है। तो बाय दिस वे यू कैन कनेक्ट योर सॉल्युबिलिटी। नाउ लेट्स एक्सप्लोर या प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट। इस टॉपिक को आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रिपरेशन में अगर हम बात करें, प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट, कुछ बच्चों को यहां पर प्रॉब्लम रहती है, मैं इसको थोड़ा सा बेटर तरीके से आपको बताने वाला हूं, आप अच्छे से समझने की कोशिश करिए। प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट को देखिए, अभी हमने ना सॉल्युबिलिटी को अच्छे से समझ लिया, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट अब आप लोगों को बहुत अच्छे से आ गई। तो एक तो हम लोग सॉल्युबल सॉल्ट के बारे में बात करेंगे, उनके प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे, और दूसरी तरफ हम इनसॉल्युबल सॉल्ट के प्रिपरेशन के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो पहले इनसॉल्युबल की बात करते हैं। देखिए इनसॉल्युबल में आपको 2 पॉइंट ही याद रखने हैं, बहुत ज्यादा कुछ परेशानी नहीं है। एक तो बेटा है डायरेक्ट सिंथेसिस, जिसको आप लोग कॉम्बिनेशन भी बोलते हैं, डायरेक्ट सिंथेसिस या कॉम्बिनेशन। तो इसके अंदर एग्जाम्पल बेटा, एक एग्जाम्पल आपको याद रखना है FeS फेरस सल्फाइड का, और एक एग्जाम्पल आप यहां पे रखिए याद ZnS का। ये एलिमेंटल कॉम्बिनेशन है। एलिमेंटल कॉम्बिनेशन यानी आयरन ने सल्फर के साथ रिएक्शन की, जिंक ने सल्फर के साथ कॉम्बिनेशन किया।
सल्फाइड, ऑल सल्फाइड्स आर इनसॉल्युबल थे, जिंक का भी होगा, आयरन का भी होगा, ये आपको अभी सॉल्युबिलिटी से समझ में आ गया। और दूसरा है बेटा इसमें, ये है प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन, और इसका दूसरा नाम है डबल डिकम्पोजिशन। कुछ लोग इसको डबल डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं, कुछ लोग इसको डबल डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट के लॉजिक को थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं, फिर बाद में रब कर देंगे इसको पढ़ते समय। डबल डिस्प्लेसमेंट में बेटा होता क्या है, आपने एक सॉल्ट लिया, यहां पर कोई सब्सटेंस लिया जिसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं, चाहे तो वो कोई सॉल्ट भी हो सकता था, और यहां पर आपके पास एक इनसॉल्युबल सॉल्ट बना, कोई बाई प्रोडक्ट मिला। याद रखिए जहां से आप शुरू करने वाले हैं, जिस सॉल्ट से आप शुरू करते हैं, इट शुड बी सॉल्युबल। रिएक्शन की शुरुआत जिस सॉल्ट से की जाती है वो सॉल्युबल होना चाहिए, तभी आपको अपना इनसॉल्युबल सॉल्ट यहां पर मिलेगा। इसको थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास है बेटा लेड कार्बोनेट। नाउ आई नो लेड कार्बोनेट बाय द सॉल्युबिलिटी, मेरे को पता है लेड कार्बोनेट इनसॉल्युबल है, तो इनसॉल्युबल है। अगर मैं लेड कार्बोनेट को सीधे मैं कुछ सपोज करते हैं मेरे को बनाना है लेड क्लोराइड, लेड क्लोराइड अगेन है इनसॉल्युबल सॉल्ट, तो मैं यहां से डायरेक्टली बेटा यहां नहीं आ सकता। लॉजिक, ये इनसॉल्युबल सॉल्ट है, ये भी इनसॉल्युबल सॉल्ट है, आप इनसॉल्युबल सॉल्ट से इनसॉल्युबल सॉल्ट डायरेक्टली नहीं बना सकते, ठीक है ना। ये पॉइंट बहुत अच्छा है। अब हम क्या करेंगे, अब करना ये पड़ेगा बेटा कि लेड क्लोराइड तक पहुंचने के लिए पहले मेरे को लेड का कोई सॉल्युबल सॉल्ट बनाना पड़ेगा। अब लेड का तो एक ही सॉल्युबल सॉल्ट होता है, दैट इज लेड नाइट्रेट। ये अभी हमने समझा था, लेड नाइट्रेट इज द सॉल्युबल सॉल्ट ऑफ लेड। लेड का नाइट्रेट वाला सॉल्ट सॉल्युबल होता है। तो लेड कार्बोनेट को या तो मैं HNO3 के साथ रिएक्शन कराऊंगा या मैं NaNO3, यानी मेरे को बेसिकली नाइट्रेट को इंट्रोड्यूस कराना है। तो नाइट्रेट को मैंने इंट्रोड्यूस कराया तो लेड नाइट्रेट बन गया बेटा, और साथ में बना सोडियम का कार्बोनेट यानी Na2CO3। अभी हम क्या करेंगे कि सोडियम नाइट्रेट जो बना इसकी रिएक्शन हमने HCl के साथ कराई। नाउ आई एम गेटिंग लेड क्लोराइड along with nitric acid. So what I mean to say, मेरा कहने का मतलब क्या है उसको आप अच्छे से समझिए। मेरा टारगेट था कि लेड कार्बोनेट से लेड क्लोराइड में बनाना चाह रहा था। This was my task according to the question. For example, I cannot react this lead carbonate directly with HCl. अगर मैं इसका रिएक्शन सीधा इससे कराऊंगा तो ये प्रोडक्ट मुझे नहीं मिल पाएगा। Make sense? क्या करना होगा, जहां से मैं शुरुआत कर रहा हूं, जिस सॉल्ट से मैंने शुरुआत की, इट शुड बी सॉल्युबल। ये वाला सॉल्ट बेटा सॉल्युबल होगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तभी आप इनसॉल्युबल सॉल्ट से इनसॉल्युबल सॉल्ट के बीच में एक स्टेप जो प्रिपरेशन का, मैं प्रिपरेशन को थोड़ा डिस्कस कर रहा हूं। इनसॉल्युबल सॉल्ट है, अच्छे से समझो रिलैक्स होकर। इनसॉल्युबल सॉल्ट है, इनसॉल्युबल सॉल्ट बनाना है, इनसॉल्युबल सॉल्ट से इनसॉल्युबल सॉल्ट। यू हैव टू प्रिपेयर इनसॉल्युबल सॉल्ट फ्रॉम इनसॉल्युबल। देन व्हाट यू हैव टू डू, इनसॉल्युबल सॉल्ट फर्स्ट बी सॉल्युबल देन बी इनसॉल्युबल। सो दिस इज द स्टेप ऑफ द रिएक्शन। First you have to convert your insoluble salt into the soluble salt, and after soluble salt again insoluble salt. So this logic you have to apply, and precipitation reaction, double displacement and double decomposition reaction, these type of reaction you know very well. So this is the main logic where you have to work a little. You explore your examples, because in chapter number 1 I think you have studied all these type of reaction where you can get lots of example. Clear? और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए अगर इसके एग्जाम्पल्स और कराने हैं तो मैं इसको और ज्यादा एक्सप्लोर कर सकता हूं आपके लिए। तो ये इनसॉल्युबल सॉल्ट के लिए आपको इतना प्रिपरेशन का समझना है। नाउ लेट्स कम टू द सॉल्युबल सॉल्ट। अब सॉल्युबल सॉल्ट के बारे में बात स्टार्ट करते हैं। तो अब सॉल्युबल सॉल्ट के प्रिपरेशन के बारे में बातें करते हैं बेटा। यहां पर आप 3-4 मेथड हैं उसके ऊपर कंसंट्रेट करेंगे। इसमें सबसे पहला हो जाएगा वही डायरेक्ट सिंथेसिस, जिसको आप कॉम्बिनेशन भी बोलते हैं। इसमें क्या होने वाला है, जैसे आप लोग फेरिक क्लोराइड, इसका काफी पॉपुलर एग्जांपल है FeCl3।
जो कि एक एलिमेंटल कॉम्बिनेशन है। दिस इज द जनरलाइज रिएक्शन, बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है फेरिक क्लोराइड बनाने के लिए। इसका एक एग्जाम्पल है बेटा, सोडियम क्लोराइड को आप एलिमेंटली बना रहे हैं, लाइक दिस वे उसके एलिमेंट से ही डायरेक्टली बना रहे हैं। So these two salt you have to memorize according to the direct synthesis in this method. After this, displacement, another method, displacement method के अंदर, जिसको substitution method भी बोलते हैं, in this we know the active metal when react with mineral acid, like zinc is reacting with HCl, magnesium is reacting with H2SO4, like in place of H2SO4 I must write HCl, reacting with HCl. So these are very common reaction where you are preparing. Although आप लोगों ने ये सारी रिएक्शन बेटा एसिड बेसिन सॉल्ट वाला जो टॉपिक हमने पढ़ाया था उसके अंदर पढ़ी होंगी, तो अगर इनका रिएक्शन का डिटेल्स आपको पढ़ना है तो आप एसिड बेस वाले जो टॉपिक्स हैं उनको अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। वहां पर मैंने एसिड के अंदर इन रिएक्शंस को बहुत ही अच्छे डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। अभी तो हम प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट की बात कर रहे हैं, सॉल्युबल हैं ये सभी, आप लोग जानते ही हैं। ये सभी सॉल्ट प्रिपेयर किए जा रहे हैं अलग अलग मेथड से। एक बेटा है न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूं। फॉर एग्जांपल मेरे पास NaOH एक एसिड प्लस बेस आपस में रिएक्शन करके सॉल्ट प्लस वाटर बना रहा है। एक और एग्जांपल ले रहा हूं यहां पर, जैसे मैंने FeOH होल ट्वाइस लिया and I am reacting it with HCl and I am getting like FeCl2 and along with water. So see here, very important point. न्यूट्रलाइजेशन के साथ कभी कभी एक पॉइंट मिलता है बेटा टाइट्रेशन का। वो कैसे आइडेंटिफाई करना है, आप क्या देखेंगे, बेस को देखिए। यू हैव टू जस्ट सी योर बेस in the acid base reaction. If this base is soluble in water and this base is insoluble, I am talking about base, not about salt, insoluble. तो अगर आपका बेस बेटा soluble है, then this neutralization reaction, although it is a neutralization reaction, acid plus base give rise to salt and water, then this neutralization reaction is also known as titration. If your base is soluble, then it is also known as titration. And if your base is insoluble in this acid base reaction, then it will remain neutralization, not the titration. ये neutralization ही रहेगी, इसको आप titration नहीं बोलते। तो कब titration बोलते हैं, कब neutralization बोलते हैं, इसके बारे में आपको क्लियर हो गया। तो ये तीन मेथड हैं जिसके थ्रू आप soluble salt को प्रिपेयर कर सकते हैं। मैं एक छोटा सा पॉइंट और ले रहा हूं सॉल्युबल सॉल्ट के लिए। सॉल्युबल सॉल्ट में एक हम लोग इधर लिख देते हैं, चलो थोड़ा सा फोर्थ वाला पॉइंट। अगर बेटा मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट किसी मिनरल एसिड के साथ रिएक्शन करता है, किसी मिनरल एसिड के साथ रिएक्शन करता है, तो भी आपको सॉल्ट अपना इस कैटेगरी में मिल सकता है। देखिए कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे सोडियम कार्बोनेट है बेटा, इसका रिएक्शन मैंने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराया, देन आई एम गेटिंग Na2SO4 which is a soluble salt along with H2O and CO2. So metal carbonate or metal bicarbonate when react with mineral acid, they gives their corresponding soluble salt along with CO2 and water. So this much you have to do. इतना आपको करना था सॉल्ट के इन सभी पॉइंट्स को लेकर। अगली क्लास में हम लोग डिफरेंट टाइप के सॉल्ट से रिलेटेड कंपाउंड्स को पढ़ने वाले हैं। सोडियम कार्बोनेट को पढ़ेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट को पढ़ेंगे, जिसके अंदर बेकिंग सोडा, वाशिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। इसकी अगली जो क्लासेस आपको मिलती चली जाएंगी, इट विल गिव यू एन इमेंस काइंड ऑफ प्लेजर। बिल्कुल सेटिस्फाई होकर अच्छे से पढ़ते जाइए, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो मुझे लगता है अच्छे से आज आपने समझ लिया, तो आप पढ़ते रहिए। सो कीप लर्निंग एंड डू वेल।